او بکریاں چرانے والے، تو نے بڑی مشکل جگہ پر قدم رکھ دیا ہے۔ میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرا سر نیزے پر چڑھے تو دور سے اونچا نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 624 عیسوی ہے، مہینہ رمضان کا ہے، وہ دن جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ بدر کے مقام پر دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک طرف قریش کا 950 آدمیوں کا مکمل لیس لشکر ہے اور دوسری طرف صرف 313 آدمیوں کی مسلم فوج ہے جن کے پاس بہت محدود وسائل ہیں۔ انصاف ظلم کے خلاف کھڑا ہے، ایمان کفر کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس نے اسلام کی حقیقی روح کو ظاہر کیا، جنگ بدر۔ وہ نازک دن آ چکا تھا جو اسلام کا مستقبل طے کرنے والا تھا۔ یا تو اسلام ایک عظیم فتح کے ساتھ ابھرنا شروع کرے گا یا پھر اس میدان جنگ میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نے مومنوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس میدان جنگ میں کیا ہونے والا تھا اور اس سے پہلے حالات اس نہج تک کیسے پہنچے؟ آئیے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ مدینہ میں نئی ریاست کے قیام کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کا نظام بھی قائم کیا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال اس نیٹ ورک کے ذریعے ایک خبر آئی، قریش نے ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بھیجا ہے۔ یقیناً اس قافلے میں صرف ان کا اپنا مال نہیں تھا۔ یاد کریں جب مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا تو انہیں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر وہ سارا مال قریش نے قبضے میں لے لیا اور بیچنے کے لیے اس قافلے میں شامل کر دیا۔ مومنوں کی محنت کی کمائی اب دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بننے والی تھی۔ دوسری طرف رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی امانتیں بھی واپس کرنے کا انتظام کیا تھا، مگر قریش نے ایسی کوئی اخلاقیات نہیں دکھائی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان مشرکین کو اصل طاقت دکھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس کے پاس سواری ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ صحابہ اس مہم کے لیے اتنے بے تاب تھے کہ باپ بیٹوں نے قرآن دازی کی کہ کون جائے گا۔ مکہ سے نکلتے وقت باپ اور بیٹوں کے درمیان جو قرآن اندازی ہوئی اس میں بیٹے کا نام نکلا، تو باپ نے کہا، بیٹے مجھے اپنی جگہ جانے دو، مگر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، اگر جنت کے سوا کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا، لیکن میں جنت کے معاملے میں کسی کو خود پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ 300 سے زائد صحابہ جمع ہوئے۔ کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن 16 سالہ عمیر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ واپس نہ جانا پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو واپس جانے کا حکم دیا، مگر ان کا شوق اور ضد دیکھ کر انہیں اجازت دی۔ ان کی تلوار زمین پر گھسیٹتی تھی اور یہی نوجوان بعد میں بدر کے شہداء میں شامل ہوا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا اور خود مہم پر روانہ ہوئے۔
तैयारियां मुकम्मल होने के बाद 313 आदमियों का लश्कर चल चलाती धूप में रवाना हुआ। फौज के पास सवारी के लिए सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मरसद ने एक ऊंट शेयर किया और बारी बारी सवारी की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदल चलने की बारी आती तो सहाबा कहते कि आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और मुझे भी तुम्हारी तरह अल्लाह के अजर की जरूरत है। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को देखकर दुआ की, ए अल्लाह, इनके पास सवारियां नहीं तो सवारी अता कर। ये नंगे पांव और भूखे हैं तो इन्हें लिबास और खाना दे। इधर अबू सुफियान को मालूम हो गया कि मुसलमान आ रहे हैं। उसने रास्ता बदल लिया और मक्का की तरफ एक आदमी दौड़ा दिया। उस आदमी ने मक्का की गलियों में चिल्लाकर कहा, ए कुरैश, तुम्हारे काफिले पर हमला हो गया है, जल्दी जाओ। मक्का में खौफ फैल गया और उन्होंने जल्दी से 950 आदमियों और 100 घुड़सवारों का लश्कर तैयार कर लिया, जिसका लीडर अबू जहल था। अबू लहब बीमारी का बहाना करके रुक गया। कुछ देर बाद कुरैश की फौज को अबू सुफियान का पैगाम मिला कि काफिला बच गया है, वापस आ जाओ। ज्यादातर फौज वापस जाना चाहती थी, मगर अबू जहल गुरूर में बोला, हम बदर जाएंगे, 3 दिन रुकेंगे, जश्न मनाएंगे ताकि पूरे अरब में हमारी धाक बैठ जाए। वो फौज को मनाकर आगे बढ़ा। जब मदीना तक ये खबर पहुंची कि कुरैश एक बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुहाजिरीन की तरफ से कहा, हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम आपके साथ लड़ेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से सुनना चाहते थे। तब साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और कहा, हमने आप पर ईमान लाया है, हम मुकम्मल इताअत का वादा करते हैं, आप हमें जो हुक्म देंगे हम करेंगे। जरा सोचें कि अगर हम वहां होते तो क्या हमारा ईमान भी ऐसा ही होता। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखलिसाना बातें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, अल्लाह ने मुझसे 2 में से एक चीज, काफिला या फतह का वादा किया है। खुदा की कसम, मैं देख रहा हूं कि दुश्मन कहां कहां गिरेंगे। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। मैदान बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के कुओं के करीब पड़ाव डाला। जंगी हिकमत अमली के माहिर हुबाब बिन मुंजिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि हम कुरैश की क़यामगाह के करीब वाले कुएं पर कब्जा करके तालाब बना लें और बाकी कुएं बंद कर दें ताकि दुश्मन पानी को तरसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा मान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े तरतीब दी, तीरंदाज पीछे और नेज़ा बरदार आगे, और हुक्म दिया कि जब तक दुश्मन करीब ना आए तीर और तलवार मत चलाना और मेरी इजाजत के बगैर हमला मत करना। रात हुई तो सब सो गए सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात गिरियाओ जारी करते रहे कि ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरी इबादत कौन करेगा। अल्लाह ने कुरान सूरह अनफाल में वादा किया कि 1000 फरिश्तों से मदद की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में एक छड़ी यानी तीर लेकर सफ़ें सीधी कर रहे थे। एक सहाबी सवाद बिन गुजिया रज़ी अल्लाह सफ से थोड़ा बाहर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से उनके पेट पर हल्का सा इशारा किया कि सीधे हो जाओ। सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तकलीफ दी है, मुझे बदला चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना कुर्ता मुबारक उठा दिया कि बदला ले लो। सवाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चूम लिया और कहा, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मौत से पहले मेरी जिल्द आपके जिस्म से छू जाए। जंग का दिन आ गया। कुरैश बदर पहुंचे तो कुओं पर मुसलमानों का कब्जा देखकर हैरान हुए, मगर अपनी बड़ी तादाद पर गुरूर करते रहे। 313 का मुकाबला 950 से था। मैदान में मुसलमानों के नारे अल्लाहु अकबर गूंज रहे थे, जबकि दूसरी तरफ काफिरों के ढोल बज रहे थे। हक और बातिल आमने सामने थे। पुरानी जंगी रिवायत
मुबारजत के तहत कुरैश की तरफ से उतबा, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद आगे आए। अंसार के 3 नौजवान आए तो उतबा ने तकब्बुर से कहा, हमें अपने बराबर वालों से लड़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा को भेजा। हमज़ा का मुकाबला शैबा से, अली का वलीद से और उबैदा का उतबा से हुआ। अली और हमज़ा ने फ़ौरन अपने मुखालिफिन को मार गिराया और फिर उबैदा की मदद करते हुए उतबा को भी कत्ल कर दिया। उबैदा शदीद ज़ख्मी हुए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम शहीद हो। ये सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी रूह परवाज कर गई। कुरैश के 3 बड़े सरदारों की मौत पर उनकी फौज सदमे में थी। अबू जहल ने चिल्लाया, इनकी मौत से न घबराओ, मोहम्मद और उसके साथी हमारे लिए बस एक छोटा सा नवाला है। जंग बाकायदा शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे आगे थे और सहाबा का हौसला बढ़ा रहे थे। हज़रत अली ने बाद में फरमाया कि इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब दुश्मन के और कोई न था। हमज़ा, अली और उमर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुरैश की फौज में अबुल बख्तरी भी था, जिसने मक्का में मुसलमानों का बाइकॉट ख़त्म करवाने में मदद की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि उस शख्स को ना मारा जाए। मजर नामी सहाबी ने उसे मारने से गुरेज किया और वजह भी बताई, मगर वो गुरूर में आकर सहाबी पर हमला आवर हो गया। नतीजतन जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जंग उरूज पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और दुश्मनों की तरफ फेंक कर दुआ की कि इनके चेहरे स्याह हो जाएं और इनके दिलों में खौफ भर जाए। वो मिट्टी पूरी कुरैश की फौज की आंखों में लगी। फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों और तेज हवाओं की सूरत में नाजिल हुई। जब हवा चली तो वो 3 मरहलों में थी। पहली हवा में हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ आए, दूसरी में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और तीसरी में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। अबू जहल जो मुसलमानों को छोटा नवाला कह रहा था, अब छुप रहा था। अंसार के 2 नौजवान भाइयों मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु और माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से अबू जहल को पहचानने का कहा, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही इशारा मिला, दोनों ने अबू जहल पर हमला कर दिया। एक ने टांग पर वार किया, दूसरे ने उसे गिरा दिया। जब इन 2 भाइयों ने अबू जहल को गिराया तो अबू जहल का बेटा इक्रिमा, जो बाद में मुसलमान हुए, वहां मौजूद था। उसने मुआज रज़ी अल्लाह अन्हो के कंधे पर वार किया, जिससे उनका बाजू लटक गया। मुआज रज़ी अल्लाह अन्हो ने सारा दिन इसी लटकते बाजू के साथ जंग लड़ी और जब वो रुकावट बना तो उन्होंने उसे अपने पांव के नीचे दबाकर खुद ही अलग कर दिया ताकि जंग जारी रख सकें। बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मर्दों में अबू जहल को ढूंढा। उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। मरते वक्त भी उसका गुरूर कायम था। जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल की गर्दन पर पैर रखा तो अबू जहल ने मरते हुए कहा, ओ बकरियां चराने वाले, तूने बड़ी मुश्किल जगह पर कदम रख दिया है। इसके तकब्बुर का ये हाल था कि उसने कहा, मेरी गर्दन नीचे से काटना ताकि जब मेरा सर नेज़े पर चढ़े तो दूर से ऊंचा नजर आए और लगे कि किसी सरदार का सर है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी की तलवार से इसका सर कलम कर दिया और इस तरह इस उम्मत के फ़िरौन का खात्मा हो गया। एक हैरत अंगेज बात यह थी कि जंग से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जगहों पर हाथ रखकर बताया था कि यहाँ फलां काफिर सरदार मरेगा, वो सब बिल्कुल वहीं मुर्दा पाए गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि खुदा की कसम, कोई एक भी उस निशान से जरा बराबर भी इधर उधर नहीं गिरा था जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था। ये अल्लाह का एक वाज़ेह मौजज़ा था। कुरैश का लश्कर तित्तर बित्तर होकर भागने लगा। कुरान ने सालों पहले मक्का में सूरह कमर में ये पेशगोई कर दी थी कि अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और पीठ फेर कर भागेगी। जिस वक्त मुसलमान कमज़ोर थे तब की गई ये पेशगोई
उस दिन सच्ची साबित हुई। फतह के बाद मुसलमान मदीना वापस आए, लेकिन वो खुशी गम में बदल गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा वफ़ात पा चुकी थीं। मदीना में जहां एक तरफ फतह की खुशी थी, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बड़ा गम छाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ौजा थीं, वो शदीद बीमार थीं और इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। जब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़तह की खुशखबरी लेकर मदीना पहुँचे तो उसी वक्त हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की तदफीन हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी न सके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी 6 औलादों को अपने सामने दफन किया। ये एक अजीम इम्तिहान था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुख में बहुत उदास थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाला कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के शौहर अबुल आस बदर में कैदी बनकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वो ज़ैनब को मदीना भेज देंगे। मक्का से निकलते वक्त मुशरिकों ने उन पर हमला किया, जिससे उनका हमल ज़ाय हो गया और वो ज़ख्मी हालत में मदीना पहुंची। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ऊँट से गिरीं तो उनका हमल ज़ाय हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें मदीना में इस हाल में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पोते नवासे के ज़ाय होने का शदीद दुख था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम आजमाइशों को सब्र से सहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी थी ताकि वो हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना बन सकें। इतने गमों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे और दूसरों को भी उम्मीद देते थे। इस फतह के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और खुशी दी, वो थी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का निकाह। ये एक इंतहाई सादा शादी थी, जिससे एक बरकत वाला घराना वजूद में आया और हसन और हुसैन जैसी अजीम शख्सियात पैदा हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को लड़खड़ाते देखा तो मिंबर से उतरकर उन्हें गोद में उठाया और फिर वापस आए। सजदे में होते और वो पुश्त पर चढ़ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर देते ताकि उनका खेल खराब ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये दोनों इस दुनिया में मेरे 2 महकते फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से बेहतरीन मिसालें कायम की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे झड़का नहीं और कभी ये नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया या क्यों नहीं किया। इधर मक्का में जब शिकस्त खुर्दा लश्कर पहुंचा तो कोहराम मच गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। अबू सुफियान, जो अब कुरैश का गैर एलानिया सरबराह बन चुका था, उसने ऐलान किया कि कोई शख्स अपने प्यारों पर नहीं रोएगा, क्योंकि अगर हम रोए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हमारी कमजोरी का पता चल जाएगा और वो हम पर हंसेंगे। उसने ये भी कसम खाई कि जब तक वो बदर का बदला नहीं ले लेता वो अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा और ना ही गुस्ल करेगा। मक्का की गलियों में एक अजीब सी खामोशी और इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसी दौरान मक्का में एक और मौत हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अबू लहब, जो अपनी बीमारी की वजह से जंग में नहीं जा सका था, वो इस जिल्लत आमेज शिकस्त की खबर सुनकर सदमे से निढाल हो गया।
اسے अदसा नामी एक ऐसी बीमारी लगी जिसमें जिस्म पर दाने निकल आते हैं और गोश्त सड़ने लगता है। उसके अपने बेटों ने भी छूत की बीमारी के डर से उसे छोड़ दिया। जब वो मर गया तो 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही, यहाँ तक कि बदबू फैल गई। आखिरकार हबशी गुलामों ने उसे दूर से लकड़ियों से धकेलकर एक गड्ढे में डाला और ऊपर से पत्थरों का ढेर लगा दिया। ये अंजाम था उस शख्स का जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। अबू सुफियान ने अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए एक छोटा सा हमला करने का सोचा। वो 200 सवार लेकर मदीना के करीब पहुंचा, 2 मुसलमानों को शहीद किया और कुछ खजूर के बागात को आग लगा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पीछा किया। अबू सुफियान और उसके साथी इतने डर गए कि अपना बोझ हल्का करने के लिए सत्तू, जो अरब का खाना था, के थैले रास्ते में फेंकते भाग गए। मुसलमानों ने वो थैले उठा लिए। इसीलिए इस मुहिम को ग़ज़वाए सवैक़, सत्तू वाली जंग कहा जाता है। इधर मदीना में एक और खुशी का मौका आया। हज़रत अली ने हिम्मत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगा। अली के पास कुछ नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनका तक़वा और खुलूस देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वो ज़िरह कहाँ है जो मैंने तुम्हें बदर में दी थी? अली ने वो ज़िरह बेची और निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह सादगी की वो मिसाल बना जिसकी नज़ीर पूरी कायनात में नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे लाडली बेटी के लिए जो जहेज़ तैयार किया, उसमें चमड़े का एक गद्दा था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा था और मिट्टी के 2 घड़े थे। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इन दोनों में बरकत अता फरमा, इनके घर में बरकत अता फरमा और इनकी नस्ल में बरकत अता फरमा। फिर वो वक्त आया जब हसन और हुसैन की विलादत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन नवासों से इस कदर मोहब्बत करते थे कि जब आप सजदे में होते और वो आपकी पुश्ते मुबारक पर चढ़ जाते तो आप सजदा लंबा कर देते ताकि वो खुद से नीचे उतरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आपकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक अजीम लीडर होने के बावजूद घर में एक मुशफ़िक़ बाप और मोहब्बत करने वाले नाना कैसे बना जाता है। अब हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की। इस बात को समझने के लिए हमें उस दौर के अरब मुआशरे और दीनी ज़रूरतों को देखना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज सिर्फ आपकी बीवियां नहीं थीं, बल्कि वो उम्मत की माएँ और मुअल्लिमा थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जो उम्र में सबसे छोटी थीं, अल्लाह ने उन्हें बला का हाफिज़ा अता किया था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की निजी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और अखलाक के वो पहलू उम्मत तक पहुँचाए जो मर्द सहाबा नहीं देख सकते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी अहादीस की तादाद 2000 से ज़्यादा है और बड़े बड़े सहाबाए कराम पेचीदा मसाइल पूछने के लिए आपके पास आते थे। अगर आयशा ना होती तो दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम तक ना पहुंच पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर शादियां भी या तो किसी कबीले को इस्लाम के करीब लाने के लिए थीं या उन बेवा ख़वातीन को सहारा देने के लिए जिनके शौहर जंगों में शहीद हो चुके थे और उनका कोई पुरसाने हाल न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ एक बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ गुजारे। मक्का की इस कठिन ज़िंदगी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हो रहा था, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी सबसे बड़ी ढाल थीं। उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें याद करके रो पड़ते थे। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां नहीं दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम नहीं,
وہ تب مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے میرا انکار کیا۔ انہوں نے اپنا مال مجھ پر تب خرچ کیا جب سب نے ہاتھ روک لیے، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی عدل اور محبت کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے درمیان باری مقرر فرماتے تھے اور ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے تھے، ذرا تصور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جج بھی تھے جو لوگوں کے فیصلے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی کمانڈر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کی نماز کی امامت بھی فرماتے، صحابہ کی تربیت بھی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی کرتے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر داخل ہوتے تو ایک مثالی شوہر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، وہ اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے اور گھر کے کام کاج میں مدد کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی وہ ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ کی پکار کے سامنے دنیا کی ہر محبت پیچھے رہ جاتی۔ اب مدینہ کے داخلی حالات بدل رہے تھے۔ بدر کی فتح نے جہاں مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، وہیں مدینہ کے یہودی قبائل کے سینوں میں حسد کی آگ بھر دی۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور شرارتی قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ انہوں نے معاہدہ مدینہ کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ وہ بازاروں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہریلی نظمیں پڑھتے۔ ایک دن ایک انصاری صحابی نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ تو صحابی نے جواب دیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ اس پر بحث بڑھی اور یہودی نے گستاخی کی، جس پر صحابی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو قریش پر آیا۔ اسلام قبول کر لو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تمہاری کتابوں میں میرا ذکر موجود ہے۔ یہودیوں نے جواب میں انتہائی تکبر سے کام لیا۔ وہ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کو اس بات پر غرور ہو گیا ہے کہ آپ نے قریش کے ان لوگوں کو ہرا دیا جنہیں جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اگر آپ کا پالا ہم سے پڑا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلی جنگجو کون ہوتے ہیں۔ یہ براہ راست جنگ کا اعلان تھا۔ اسی دوران ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں اپنی ضرورت کا سامان لینے گئیں۔ جب وہ ایک سونار کی دکان پر بیٹھیں تو ایک یہودی نے شرارت سے ان کی چادر کا پلو ان کی پیٹھ کے پیچھے اوپر کی طرف ایک کانٹے سے باندھ دیا۔ جب وہ خاتون کھڑی ہوئیں تو ان کا لباس ہٹ گیا اور وہ بے پردہ ہو گئیں۔ یہودی اس پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ خاتون نے مدد کے لیے پکارا تو قریب ہی موجود ایک مسلمان صحابی نے غیرت میں آ کر اس یہودی سونار کو قتل کر دیا۔ جواب میں وہاں موجود یہودیوں نے اکٹھے ہو کر اس مسلمان صحابی کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو مدینہ میں تناؤ اپنی حدوں کو چھونے لگا۔ اب بات صرف معاہدے کی نہیں تھی، بلکہ ایک مسلمان خاتون کی عزت اور ایک مسلمان کے خون کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ یہودیوں کی تمام اکڑ ختم ہو گئی اور وہ اپنے قلعوں میں قید ہو کر رہ گئے۔ آخرکار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے فیصلے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ اسی دوران منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سامنے آیا، کیونکہ بنو قینقاع اس کے پرانے حلیف یعنی دوست تھے۔
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پکڑ لی اور اصرار کرنے لگا کہ میرے ان 700 جنگجوؤں کو معاف کر دیں جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدتمیزی پر سخت ناراض ہوئے، لیکن امن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ بنو قینقاع اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ سے نکل گئے اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ مدینہ اب ان فتنہ پرور لوگوں سے پاک ہو چکا تھا، لیکن سکون ابھی دور تھا۔ مکہ میں ابو سفیان نے 3000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، جس میں گھڑ سوار، تیر انداز اور حبشی غلام بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ مکہ کی عورتیں بھی تھیں جو دف بجا کر جنگی ترانے گا رہی تھیں تاکہ مردوں کو غیرت دلائیں۔ ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے جو مکہ میں تھے یہ اطلاع مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی تلوار ذوالفقار کا سرا ٹوٹا ہوا تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے خاندان کے لوگ شہید ہوں گے اور زرہ سے مراد مدینہ کا شہر ہے۔ اب حق اور باطل کے درمیان ایک اور عظیم مارکا ہونے والا تھا، وہ مقام جہاں مسلمانوں کی ہمت اور اطاعت کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا، یعنی میدان احد۔ اسی طرح کے اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کہانی گیٹ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔